Yes, I made a presenter, can start. I'm on mute, okay? Yeah, Rajendra. Hello, Vilas. Hello, hi. Good afternoon. Good afternoon. How are you? Bas, good sir. Did you get the access? Yes, yes. But I'm not getting time that today Okay. due to that TDS and GSTR one. No, yesterday's last day. No, Okay. Quarter end Yes. activities. Not quarter end, monthly. Hmm. GSTR one, Okay. GSTR six, Hmm. TDS, and that quarterly 27 EQ TDS filing date. No, so I've stuck up यानी all returns पे था मैं. Hello, Vilas. I am Yes, audible. yes, yes, yes. Okay. Deepa is not joining. She will join in a couple of minutes. Mhm. Did you check the recording at least? Last week recording? No. Do you have I think last Saturday he mailed to me. Mhm. And Do you have some any doubts in last session, or we will start our we'll see next this night. मैंने already okay. mail किया है. So I will go through once again. Yeah, Deepa is joining. Okay. Okay. Yeah. Hi, Deepa. Good afternoon. How are you? This is joining. This is So joining. Hi, basically, Deepa. No, she's not at join. Network issue. Yeah. Hi, Deepa. Deepa, unmute yourself. Hi, can you hear Hi. me? Yeah. Yes, Yes, Bible Deepa. can take on. I'm on mute. Yeah. Thanks, yeah, Rajendra. Yeah. Hi, Deepa. Good afternoon. How are you? Hi, Isha, I'm good. How are you? Yeah, I'm good. Okay. I will share my screen now. We will start our next session. Okay. Rajendra? You are the host. Okay. Yes. but that 7th and Sunday's sheet not mail. We got up to Excel 6. sheet? Yes, yes. Okay. I'll check the mail. Otherwise, I'll send it today and last session sheet. But That because I'm financial. using same. Yeah, I'm using same sheet. Okay. 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 This is the last Sunday sheet. Hmm. And now this is today's sheet. Okay. Today's topic is the new GL concept. New GL concept. New GL means new general ledger concept. Yes. This Okay. this concept is introduced after the ECC 4.7 version. Okay. And this concept is also available in ECC as well as S4 HANA also. This new GL concept is used mainly for reporting purpose only. Okay. Okay. Due to this new GL concept, reporting
स्ट्रक्चर मीन्स बहुत इजी हो गया है, उसके कारण एंड यूजर को जो रिपोर्टिंग होता है, मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वाइज या फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाइज बहुत स्मूथली वो रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। इसमें एक क्राइटेरिया है, अगर आपको ईसीसी से S4 हाना में माइग्रेशन करना है, ओके, तो न्यू जीएल कंसेप्ट तो मैंडेटरी है ही, मगर अगर आपके पास ईसीसी में क्लासिक जीएल है, तो फर्स्ट यू नीड टू ट्रांसफर फ्रॉम क्लासिक जीएल टू न्यू जीएल, देन मूव इनटू द ईसीसी टू S4 हाना। ये प्रोजेक्ट करना पड़ता था, मतलब 1809 जो वर्जन है S4 हाना का, उसके पहले ये सारी एक्टिविटी करनी पड़ती थी। अगर ईसीसी में मेरा क्लासिक जीएल कंसेप्ट में यूज कर रहा हूँ, तो मुझे क्लासिक से न्यू जीएल कंसेप्ट में जाना पड़ता था, फिर बाद में ईसीसी से S4 हाना में कन्वर्ट करना पड़ता था। मगर आफ्टर 1809 वर्जन में S4 हाना में माइग्रेशन में ही, मतलब ईसीसी टू S4 हाना जो माइग्रेशन होता है, उसी में उन्होंने फैसिलिटी दी है। तो आपको अलग से प्रोजेक्ट रन नहीं करना पड़ता है, मतलब क्लासिक टू न्यू, फिर बाद में ईसीसी टू S4 हाना, तो इसी में उन्होंने प्रोविजन दी है। ओके, मैं एक ये एरो के साथ करता हूँ, तो मतलब आपके पास ये एक्सेल रहेगी, तो कैन बेटर अंडरस्टैंड। अभी जैसे लास्ट सेशन में अपन ने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स देखे थे, मेन लेजर, नॉन लीडिंग लेजर, मींस लीडिंग लेजर एंड नॉन लीडिंग लेजर देखा था। नॉन लीडिंग लेजर को एक एसएपी टर्मिनोलॉजी में एक वर्ड यूज होता है, कौन सा वर्ड है वो? पैरेलल लेजर, राइट? Yes, yes. तो इसी में इसमें भी वही है, मतलब लीडिंग लेजर नॉन लीडिंग लेजर का रिपोर्टिंग जो है उसके लिए वो यूज होता है। इसके अलावा एक न्यू जीएल कंसेप्ट में एक एडिशनल कंसेप्ट फीचर आ गया है, जिसको बोला जाता है डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग। ओके, अभी डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग मतलब क्या है? ये डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग जो है, ये आपको रिपोर्टिंग पर्पस के लिए ही यूज होता है। मतलब इसमें आपको अलग से कुछ ट्रांजैक्शन नहीं करना है, मतलब आपको सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन करना है इसका, जो आज अपन देखने वाले हैं उसका कॉन्फ़िगरेशन। ओके, और उसके कारण आपका जो है रिपोर्टिंग काफी स्मूथली होगा। आप अगर एक्सपीरियंस पर्सन हो या फिर फ्रेशर हो, आपको ये इंटरव्यू में न्यू जीएल कंसेप्ट ये क्वेश्चन आता ही है। ओके, मतलब एक्सप्लेन द न्यू जीएल कंसेप्ट, तो उसमें आपका लीडिंग लेजर नॉन लीडिंग लेजर तो आता ही है, मतलब नॉन लीडिंग लेजर मतलब पैरेलल लेजर। ओके, उसके दोनों एक्सप्लेन करना है, लीडिंग लेजर क्या होता है, पैरेलल लेजर क्या होता है, और उसके बाद में ये डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग में मूव होना है। डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग मेनली वी यूज फॉर रिपोर्टिंग पर्पज, और इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स है, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे बिजनेस एरिया, सेगमेंट और प्रॉफिट सेंटर। ओके, ये Yeah. 3 कैरेक्टर्स है, इसमें से आपको एक कैरेक्टर सिलेक्ट करना है बिजनेस से कंसर्न करके, और उसको आपको मैंडेटरी करना है, उसको आपको मैंडेटरी करना है। जो पहला सेशन था एंटरप्राइज स्ट्रक्चर अपन देख रहे थे, जिसमें अपन ने कंपनी कोड बनाया, कंट्रोल एरिया बनाया, उसमें Yes, अपन ने एक बिजनेस एरिया देखा था, yes, राइट? और yes. उसी पाथ में सेगमेंट और प्रॉफिट सेंटर ये 2 ऑप्शन थे। तब मैंने Hmm. बोला था कि जब न्यू जीएल कंसेप्ट करेंगे अपन कवर, तब उसमें ये डिस्कस करेंगे। तो Yeah. ये सेगमेंट और ये प्रॉफिट सेंटर जो आता है, ये डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग में आता है आपका। तो आप ये 3 में से आपको एक जो कैरेक्टर है आपको मैंडेटरी करना है। जो कैरेक्टर आप मैंडेटरी करोगे, वो कैरेक्टर आपके हर अकाउंटिंग एवरी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में आपका वो कैरेक्टर रिफ्लेक्ट होगा, और उसके बेस पे आपका रिपोर्टिंग होगा। अगर मैं ये प्रॉफिट सेंटर, अगर ये कैरेक्टर मैं करता हूँ सिलेक्ट, तो मेरे एवरी अकाउंटिंग एंट्री में मेरा प्रॉफिट सेंटर ये आएगा ही आएगा।
और उसके बेस पे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरेट कर सकते हो। क्लियर? कहाँ पे Yes. यूज हो रहा है रिपोर्टिंग में ये कैरेक्टर? प्रॉफिट सेंटर, इसमें से मैं Yes. ये, और मोस्टली जो इंडस्ट्री जो है वो प्रॉफिट सेंटर यूज करते हैं। ओके, मतलब अभी प्रॉफिट सेंटर ये मैंने मैंडेटरी किया है, मगर जरूरी नहीं है कि हर जगह मुझे मैन्युअली प्रॉफिट सेंटर डालना ही है। Mhm. ओके, जो प्रॉफिट सेंटर जो है वो मेरा जो कॉस्ट में यूज करता हूँ, जैसे कॉस्ट सेंटर या डब्ल्यू बेस या फिर इंटरनल ऑर्डर, ये तीन जो मैंने बताए थे, उसमें वो मैंडेट मतलब प्रॉफिट सेंटर ये जो है अपन मास्टर डेटा में असाइन करके रखते हैं। मतलब एग्जांपल अगर मैं देता हूँ, मैं इनवॉइस बुकिंग कर रहा हूँ, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, ये मेरी वेंडर इनवॉइस की एंट्री है। तो यहाँ पे मैंने अगर कॉस्ट ऑब्जेक्ट यूज किया, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट ऑब्जेक्ट मैंने यूज किया, कॉस्ट सेंटर अगर मैं यूज कर रहा हूँ, तो समझ लीजिए मैंने ये कॉस्ट सेंटर ये डाला हुआ है HY01, ठीक है। तो ये जो HY01 के मास्टर डेटा में जो प्रॉफिट सेंटर मैंने मेंटेन करके रखा है ना, वो प्रॉफिट सेंटर ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैप्चर होगा, आपको मैन्युअली डालने की जरूरत नहीं है। ये जो कॉस्ट ऑब्जेक्ट जो आप यूज करोगे वहां से ये प्रॉफिट सेंटर कैप्चर होगा। तो ऐसे एवरी अकाउंटिंग एंट्री में, एवरी लाइन आइटम में ये प्रॉफिट सेंटर जो है आपका अपडेट होने वाला है। मतलब आप जब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जनरेट करोगे, आप अगर प्रॉफिट सेंटर वाइज भी करते हो तो भी आपको प्रॉपर रिपोर्ट जनरेट होगा। मतलब जैसे अपन ने बिजनेस एरिया का देखा था ना, सबसे पहले क्या आता है? कंसोलिडेटेड बिजनेस एरिया, उसके अंडर अपन बिजनेस एरिया बनाए थे डिवीजन वाइज या डिपार्टमेंट वाइज। Yes. वैसे अपन प्रॉफिट सेंटर भी बना सकते हैं। सबसे हायरार्की लेवल पे रहता है मेरा प्रॉफिट सेंटर ग्रुप। तो ये आप डिपार्टमेंट वाइज या डिवीजन वाइज बना सकते हो और उसके अंडर आप माइक्रो लेवल पे आप क्रिएट कर सकते हो। क्लियर? मतलब ये मेरा डिपार्टमेंट हो गया फाइनेंस का, इसमें मैंने अभी ये रिसीवेबल आ गया मेरा डिपार्टमेंट, उसमें पेबल एक आ गया है। ओके, ये बजटिंग वाला एक है, और एक ये पेमेंट सिर्फ बैंकिंग वाला जो डिपार्टमेंट है। ऐसे मेरे अलग अलग डिपार्टमेंट है फाइनेंस में, तो इनका मैं डिपार्टमेंट वाइज ये बना सकता हूँ। VT11 बनाया, ये VT12 बनाया, ये VT13 बनाया, ये VT14 बनाया है, और ये मैं उस हिसाब से मैं रिपोर्टिंग पर्पज के लिए यूज कर सकता हूँ प्रॉफिट सेंटर। क्लियर? कहाँ Yes. पे यूज और कैसे यूज होगा ये अपना प्रॉफिट सेंटर? अगर आप सेगमेंट यूज करते हो तो आपके कॉस्ट ऑब्जेक्ट में आप सेगमेंट मेंटेन करोगे और वो सेगमेंट के कॉलम में सेगमेंट आ जाएगा। बिजनेस एरिया यूज करते हैं तो बिजनेस एरिया आप मेंटेन करोगे, बिजनेस एरिया आ जाएगा आपका। मगर मोस्टली जो प्रोजेक्ट में होता है वो प्रॉफिट सेंटर यूज होता है। Okay? अभी ये तो हो गया कैरेक्टर मेरा, इसमें से आपको एक कैरेक्टर यूज करना है। इसके अलावा ये जो डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग है, इसमें 3 फीचर्स है। कौन से 3 फीचर्स है? एक तो पहला है पैसिव स्प्लिटिंग, ओके। दूसरा है एक्टिव स्प्लिटिंग, इसका एक मेरा पास प्रॉपर PDF है, ये एक्सेल के साथ मैं वो भी शेयर कर दूंगा आपको। Okay. और तीसरा जो है जीरो बैलेंसिंग स्प्लिटिंग, ओके। अभी ये कैसे वर्क करता है, वो डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ और उसमें मैं दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा इजी होगा वो। अगर कुछ डाउट है या फास्ट हो रहा है तो तुरंत हैंड रेज करो विलास और दीपा, मैं स्टॉप होके वहां पे वापस एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर ये खत्म हो गया टॉपिक और नेक्स्ट टॉपिक चालू करने के बाद अगर आप पूछोगे तो वो रिकॉल मतलब लिंक होने के लिए टाइम Okay. भी लगेगा और लिंक Okay. डिस्टर्ब Okay. हो जाएगा आपका।
Okay. ये पैसिव स्प्लिटिंग का डेफिनेशन है। क्या दिया है? पैसिव स्प्लिट इज यूज ड्यूरिंग द क्लियरिंग ट्रांजैक्शन, फॉर एग्जांपल पेमेंट ट्रांजैक्शन। मतलब अभी यही अपन एग्जांपल लेते हैं वेंडर इनवॉइस का। ये मेरा इनवॉइस एंट्री है और इसके साथ में मैं पेमेंट की भी एंट्री कर रहा हूँ। पेमेंट की एंट्री क्या आएगी मेरी? वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक बैंक अकाउंट, राइट। ये मेरी एंट्री आ गई। ये मेरी है इनवॉइस की एंट्री और ये मेरी है पेमेंट एंट्री। अभी इसका जो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट नंबर है ये मेरा जनरेट हुआ है, इसके अगेंस्ट मैंने ये पेमेंट की एंट्री की है। अभी ये जो है पेमेंट की एंट्री का अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट नंबर, एग्जांपल लेते हैं, ये मेरा ये है, ठीक है। तो अपन ये जो वेंडर लाइन आइटम है ना, ये वेंडर लाइन आइटम, यहाँ पे आपको ये पेमेंट एंट्री का जो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट नंबर है ये आपका अपडेट हो जाएगा। ये जो वेंडर लाइन आइटम पे आपका पेमेंट का एंट्री का लाइन आइटम अपडेट हो जाएगा। इससे आपको क्या एंट्री में जाके अगर अपने को करने की जरूरत नहीं है। और ये जो है इसका कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा सिर्फ। मतलब ये जो नंबर है उनकी एसएपी स्टैंडर्ड दिया हुआ है, वहां पे जाके अपने को कॉन्फ़िगरेशन करना है अपने को। ये हो गया अपना पैसिव स्प्लिटिंग। अभी दूसरा जो एग्जांपल देता हूँ एक्टिव स्प्लिटिंग का। अभी एक्टिव स्प्लिटिंग में मेरा अकाउंटिंग एंट्री देता हूँ वेंडर अकाउंट क्रेडिट, ये मेरा है 10,000 रुपीज। ओके, ये स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, ये आ गया मेरा 8,000 रुपीज। वेंडर ये मेरा स्टेशनरी अकाउंट डेबिट आया 2,000 रुपीज। ओके, बाद में मेरा इनपुट टैक्स अकाउंट डेबिट आया, ये मेरा टोटल टैक्स आया 1,000 रुपीज, ये 11,000 रुपीज। अभी ये मेरे अकाउंटिंग एंट्री है इनवॉइस की। ओके, यहाँ पे मैंने कैरेक्टर जो मैंडेटरी किया है प्रॉफिट सेंटर मैंडेटरी किया है, राइट। इसमें अपन लेते हैं ये मेरा प्रॉफिट सेंटर है VT11 और ये VT12, ये प्रॉफिट सेंटर है मेरा। मैंने 11,000 रुपीज की स्टेशनरी परचेस की, उसमें से जो 8,000 की किसके लिए यूज कर रहा हूं मैं? रिसीवेबल डिपार्टमेंट के लिए, और 2,000 के लिए पेबल डिपार्टमेंट के लिए यूज कर रहा हूँ, राइट। मगर मुझे इसमें से कुछ आइडेंटिफाई हो रहा है क्या? ये जो 1,000 रुपीज का मेरा टैक्स डिडक्ट हुआ है, इसमें से मेरा VT11 का कितना है या VT12 का कितना है, ये आइडेंटिफाई हो रहा है क्या यहाँ से? नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, राइट। तो अगर मैं ये एक्टिव कॉन्फ़िगरेशन करता हूं तो मेरी अकाउंटिंग एंट्री कैसे आएगी? टू वेंडर अकाउंट
ओके, यहाँ पे आएगा 8,800। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट 8,000, इनपुट टैक्स अकाउंट डेबिट 800। ये कौन सा है मेरा? VT 11, राइट? ये अकाउंटिंग एंट्री स्प्लिट हो जाएगी। और दूसरी जो अकाउंटिंग एंट्री मेरी जो क्रिएट होगी, VT 12 की ये एंट्री हो जाएगी। मतलब आप अगर जब इनपुट टैक्स का जो मेरा अकाउंट हेड है, मतलब आप जब देखोगे इनपुट टैक्स का जब लेजर आप ओपन करोगे, तो आपको यहाँ पे फर्स्ट लाइन आइटम दिखेगा 800 का, फिर बाद में दिखेगा 200 रुपीज का। ये आपका ऑटोमेटिकली स्प्लिट हो जाएगा ये एंट्री। मगर आपको ये जो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट टाइप है, अभी ये जो वेंडर इनवॉइस अपन जो यूज कर रहे हैं, just give me सॉरी। अभी आप अगर ये इनपुट टैक्स का अगर 100 और 200 रुपीज की ये एंट्री आपको लेजर पे दिखेगी, और यहाँ पे आपको प्रॉफिट सेंटर वाइज आपको ये रिपोर्ट भी मिलेगा। मगर उसके लिए ये जो अपन इनवॉइस क्रिएट कर रहे हैं ना, इसके लिए जो डॉक्यूमेंट टाइप यूज कर रहे हैं, जैसे अपन ने डॉक्यूमेंट टाइप कंसेप्ट देखा था सबसे पहले सेशन में, ये मेरा डीआर ये डॉक्यूमेंट टाइप है। डीआर या केआर अपना वेंडर इनवॉइस का जो होता है, तो ये केआर डॉक्यूमेंट टाइप अपने को कॉन्फ़िगरेशन में मेंटेन करके रखना है। वो कॉन्फ़िगरेशन आज अपन कवर करेंगे, मगर उसके पहले मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे कैसे स्प्लिट होता है और कैसे अप्लीकेबल होता है ये डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग। क्लियर? ये एक्टिव स्प्लिटिंग क्लियर हुआ? Yes. Yes. जो डॉक्यूमेंट टाइप आप कॉन्फ़िगर करके रखोगे उसी के लिए ये अप्लीकेबल होगा। आप अगर जो डॉक्यूमेंट टाइप कॉन्फ़िगर नहीं करोगे, उनके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। मतलब अगर आप यहाँ पे डेफिनेशन देखोगे एक्टिव स्प्लिटिंग की, the system split the document on the basis of predefined splitting rules। मतलब अपन स्प्लिट डिफाइन रूल क्या दे रहे हैं? ये डॉक्यूमेंट टाइप। अपन ये परसेंटेज नहीं दे रहे कि 80% 20% अपने को करना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट टू डॉक्यूमेंट वेरी होगा अपना परसेंटेज। कभी 50-50 भी होगा, कभी 40-60 होगा, 60-40 होगा। तो वो परसेंटेज अपन ने डिफाइन कर रहे हैं। अपन क्या डिफाइन कर रहे हैं? डॉक्यूमेंट टाइप। मेरा क्लियर? क्वेश्चन है एक, सपोज VT11 is my Maharashtra state and VT12 हम्म is my Gujarat state। हम्म तो ये दैट इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत हो जाएगा ना? हाँ, इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत हो जाएगा। उस केस में आपके टैक्स कोड भी अलग अलग आएंगे। ओके। अभी ये जो लाइन आइटम वाइज है, जैसे ये आपका VT 11 का लाइन आइटम है, आपका विद इन मतलब सेम स्टेट का है, तो आपका यहाँ पे क्या आएगा? CGST और GST SGST आएगा, और यहाँ पे आपका सिर्फ IGST वाला आएगा। मतलब इधर आपकी एंट्री बनते वक्त ही आपकी कैसे आएगी एंट्री? अच्छा, वो ऑटोमेटिक स्प्लिट हो जाएगा। यस, ओके। ये आपकी एंट्री बनेगी। मतलब आपका ये CGST आ गया, और ये आपका नीचे जो लाइन है उसमें क्या आएगा? आपका SGST आएगा, और फिर थर्ड जो है आपका IGST आएगा। क्योंकि इसमें अपन अलग अलग GL मेंटेन कर रहे हैं, ये सारे चीजें हैं अपने।
CGST के लिए अलग GL रहेगा, SGST के लिए अलग रहेगा, IGST के लिए GL अलग रहेगा। तो आपकी लाइन आइटम अलग अलग क्रिएट होगी। क्लियर? क्लियर है, बट इट्स सेम इनवाइस में नहीं कर सकता है ना वेंडर का? कर सकते हैं आप सेम इनवाइसिंग में। सेम इनवाइस में कर सकते हैं। हाँ, वेंडर अगर एक ही होगा, मगर वेंडर एक भी होगा तो उसका बिजनेस प्लेस के लिए प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि IGST में मतलब आपका अलग स्टेट आ जाएगा ओके, और मतलब एक ही GST बिल में, नंबर अलग आ जाएगा। बट और यहाँ पे सेम एक बिल में GST, हाँ मल्टीपल टैक्स नहीं कर सकते ना ऐसे? रेट वाइज इज ओके। हाँ, अलग अलग करना पड़ेगा आपको, क्योंकि बस, आपका जो बिजनेस प्लेस अलग अलग आएगा इसमें। यस यस। अगर सेम नहीं, वो स्टेट का बिल होगा, एक्सेप्ट नहीं करना पड़ेगा, ये जो हाँ, रिवाइज बिल लेना पड़ेगा ऐसा, ठीक है। हम्म, और क्योंकि सेम स्टेट का अगर रहा, मतलब मेरे सारे CGST SGST रहे, तो आप एक एंट्री कर सकते हो, या या फिर सारे मेरे IGST वाले हैं तो आप सेम बिल यूज कर सकते हैं, भले परसेंटेज अलग अलग हो आपके। या मल्टीपल टैक्स इज ओके। क्लियर है एक्टिव यस स्प्लिटिंग? यस यस यस। अभी जीरो बैलेंसिंग स्प्लिटिंग देखते हैं। 1 minute, sir. In Yeah. passive splitting, actually, I have doubt. Like, it will take the same document number in the vendor account. You said, right? Like Yes. 401. On the basis of amount or on the basis of vendor name, on which basis it will take the document, and it will say that it is not open. इसमें जो है, ये जो डॉक्यूमेंट नंबर जो कैप्चर होता है, अपन जब एंट्री करते हैं पेमेंट एंट्री, अभी जैसे उसके लिए टी कोड है F-53 या फिर F110, ये जो टी कोड यूज करते हैं अपन, तो अपन सिलेक्ट जब करते हैं, ये मैं पेमेंट के आगे ये डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं 14001 इसके अगेंस्ट मैं पेमेंट कर रहा हूँ। तो ये डॉक्यूमेंट नंबर के अगेंस्ट आपका ये जो नंबर है ये अपडेट हो जाता है आपका। आपने अगर 3 इनवॉइस के अगेंस्ट एक पेमेंट की एंट्री भी की ना, तो तीनों इनवॉइस में आपका एक ही डॉक्यूमेंट नंबर अपडेट होगा। Okay. और एक दूसरा क्या है पैसिव स्प्लिटिंग में, जैसे अभी जैसे मैंने यहाँ पे प्रॉपर इनवॉइस क्रिएट किया, फिर बाद में अकाउंट मतलब पेमेंट की एंट्री की। अगर कुछ अभी क्लासिक GL में क्या होता था कि मैंने बगैर इनवॉइस का भी डायरेक्टली पेमेंट की एंट्री जो है ना, ये वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये कर सकते थे, मगर वो अभी अपन न्यू GL कंसेप्ट में नहीं कर सकते। विदाउट इनवॉइस अपन डायरेक्ट पेमेंट की एंट्री क्रिएट नहीं कर सकते। वहां पे आपको एरर आ जाता है कि आपने कैटेगरी, मतलब यहाँ इसका जो यहाँ पे आपका कॉन्फ़िगरेशन है, उसका मैसेज आ जाता है, एरर मैसेज, कि आपने ये जो GL है, मतलब अकाउंट हेड जो है, आपने आइटम कैटेगरी मेंटेन करके रखा है कैश या बैंक बैलेंस के आगे, तो आप एंट्री क्रिएट नहीं कर सकते हो। मतलब विदाउट इनवॉइसिंग आप पेमेंट की एंट्री डायरेक्टली कर नहीं सकते आप, पैसिव स्प्लिटिंग आप अगर यूज कर रहे हो तो। Okay. Even if we have ये any एक advance also, right? If we have any advance. एडवांस एडवांस में, एडवांस बोलो, कब कॉल देते चला हैं रहे? आप? परचेस ऑर्डर अगर आप क्रिएट कर हाँ, रहे हैं, कॉल वो चल रहा है, एडवांस का यहाँ सिनेरियो पे कैसे कुछ रहता है? अच्छा। मैंने हेलो। परचेस ऑर्डर क्रिएट किया, ठीक है, इसमें मेरी परचेस ऑर्डर वैल्यू है 1 लाख रुपीज, ओके, और हाँ, कंडीशन कर है दिया था। ये मेरा एडवांस 15,000 परचेस ऑर्डर के लेस बाद करके में किया था। तुरंत मुझे 50% मुझे हाँ हाँ एडवांस हाँ हाँ, देना कर है। दिया था। तो यस, आपका अगर GRN, मतलब जब तक गुड 15 रिसीट नहीं होता है, 15,000 तब तक होल्ड करके आप बाकी एडवांस किया की था एंट्री कर पेमेंट। सकते हैं, मगर वो किसके अगेंस्ट रहेगी? आपकी परचेस ऑर्डर के अगेंस्ट ही रहेगी आपकी। हम्म। तो आपका अगर परचेस ऑर्डर का हिस्ट्री आप अगर हाँ, तो वही देखोगे, वही तो 15,000 उसमें बाकी आपकी रखे, बाकी कर एडवांस दी। की भी एंट्री ठीक आ है। जाएगी। हाँ अगर ये। आपने परचेस ऑर्डर के अगेंस्ट एडवांस की एंट्री नहीं की, तो आपके पूरे आगे लिंक नहीं लगेगी कि आपने इसका एडवांस दिया है नहीं दिया है। क्योंकि आप जब इसके आगे इनवॉइस बुक करोगे, अभी एग्जांपल देता हूँ, ये मैंने एडवांस एंट्री किया, ये मेरा फिर बाद में गुड रिसीट कर रहा हूँ, ओके,
और बाद में मेरा आया इनवॉइस रिसीट। इनवॉइस रिसीट मतलब मेरा लायबिलिटी बुक कर रहा हूँ। लायबिलिटी मेरा बुक होता है 100%, मतलब एडवांस भी दिया होगा तो आपकी एंट्री आ जाएगी उसमें, मगर आपने जितना भी गुड रिसीट किया है ना उसके अगेंस्ट ही आपका इनवॉइस रिसीट होता है, मतलब लायबिलिटी बुक करना पड़ता है। और उसके बाद में आपकी आएगी पेमेंट की एंट्री। अगर ये परचेस ऑर्डर हिस्ट्री के अगेंस्ट आपने एडवांस नहीं दिया तो ये पेमेंट के टाइम आपको लिंक नहीं लगेगा इसका, क्योंकि ये जो वेंडर अकाउंट एंट्री रहेगी अपनी, यहाँ पे क्या रहेगा, वेंडर क्रेडिट रहेगा 1 लाख रुपए, और यहाँ पे वेंडर अपन ने दिया हुआ है 50,000 का, ये अपने को नॉक ऑफ करना पड़ेगा, तब जाके अपन सिर्फ नेट अमाउंट पे कर पाओगे। मगर वो आपको परचेस ऑर्डर के अगेंस्ट ही देना चाहिए, तो ही आपका ये लिंक लगेगा। But in that case, it अदरवाइज will allow, right? In the passive splitting also, advance case, if we have a purchase order, then it will allow us to do the payment entry, right? या आप अगर विदाउट इनवॉइस भी एडवांस दे सकते हैं। वो जो है आपका डे टू डे पीटी कैश बुक जो रहता है ना, वैसे पीटी कैश बुक फैसिलिटी भी एसएपी में अवेलेबल है, तो उसके थ्रू आप एडवांस दे सकते हैं। पीटी कैश बुक करके अपने पास है फैसिलिटी, मगर उसमें आप लिमिटेशंस रहते हैं। उसमें आप लिमिट सेट करके रख सकते हैं, सिर्फ 5,000 10,000, या फिर डे टू डे जो एक्सपेंसेस जो है आपके, जो जेरोक्स का है, जेरोक्स के लिए तो अपन मतलब अगर 150 रुपए का आप अगर जेरोक्स करते हैं तो उसके लिए आप इनवॉइस बुक करोगे, ये सारा तो नहीं करेंगे ना, क्योंकि उसमें वो वेंडर रजिस्टर भी नहीं होगा जेरोक्स सेंटर वाला, वो वन टाइम वेंडर होगा आपका। तो वो सारे एक्सपेंसेस आप पीटी कैश से आप कर सकते हैं। वहां पे आपकी डायरेक्टली एंट्री आपकी पेमेंट की होगी, मगर वो सिर्फ कहाँ पे, पीटी कैश में। मगर ये अगर डायरेक्टली आप ऐसे एंट्री करने जाओगे तो वो एंट्री के लिए आपको अलाउ नहीं करेगी सिस्टम, डायरेक्ट पेमेंट की एंट्री के लिए। और सपोज ये एडवांस पेमेंट दिया है एंड सम टैक्स एप्लीकेबल रहेगा टीडीएस पार्ट्स, तो ऑटोमेटिक कैसे कर देगा? हाउ टू टाइम ऑफ अपना जो टीडीएस जो होता है, इनवॉइस और पेमेंट विचेवर इज अर्लियर, उसके ऊपर अपना कैलकुलेट होता है। तो आप अगर एडवांस की एंट्री करते हैं तो उसके ऊपर भी आपका टीडीएस कैलकुलेट होता है। जितना आपने एडवांस दिया है वो अपना जो विथहोल्डिंग टैक्स वाला जो आएगा ना सिलेबस, उसमें अपना कवर होगा। उसके लिए एसएपी ने एक्सटेंडेड विथहोल्डिंग टैक्स करके इंट्रोड्यूस किया हुआ है। एक्सटेंडेड विथहोल्डिंग टैक्स है और एक क्लासिक विथहोल्डिंग टैक्स है। ये क्लासिक में जो था ना, यहाँ पे पेमेंट के लिए नहीं था, एक्सटेंडेड में है वो फैसिलिटी। ओके ओके। इवन मतलब आपको पता होगा विलास, एलडीसी का जो होता है ना, लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट, यस यस यस, वो भी फैसिलिटी अवेलेबल है। ओके ओके। मतलब आप मतलब जो भी वैलिडिटी देते हैं या थ्रेशोल्ड अमाउंट मेंटेन करते हैं, उसके बेस पे वो प्रॉपर कैलकुलेट करता है टीडीएस। यस यस। ओके। And that limit facility is also available. Any suppose 194Q that 50 lakhs is the limit, no? So नहीं, above उसके purchase, लिए आपको कस्टमाइजेशन करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड में वैसा नहीं दिया है। इवन आपका 206C का जो नया आया है आपका, उसमें भी हाँ टीसीएस वाला, राइट, तो वो 50 lakhs के ऊपर ही है ना, उसके ऊपर चार्ज होगा 1%, राइट? यस यस यस। तो वो आपको कस्टमाइजेशन करना पड़ता है उसके लिए एबेपर के हेल्प से, वो स्टैंडर्ड में नहीं है अवेलेबल। ओके ओके ओके। उसमें वो बहुत ये है एकदम डिक्लेरेशन वगैरह लेना पड़ता है पार्टी से। टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर रहेगा तो ये एप्लीकेबल नहीं रहेगा। यस, राइट। एंड ये जो एक्टिव स्प्लिटिंग में देखा है ना, दैट जीएसटी पार्ट्स, ये इनको टैक्स क्रेडिट हो गया। सपोज माय इट्स टैक्स इज माय ब्लॉक आईटीसी, तो हाउ टू रिवर्स? ब्लॉक आईटीसी
मतलब आपकी अकाउंटिंग एंट्री क्या रहेगी मुझे बताओ। नहीं, इट्स अ प्रॉपर एंट्री है अभी सपोज, ठीक है, हम्म बट दैट आईटीसी पार्ट है इज नॉट एलिजिबल है मेरा, जैसे सीमेंट नॉन परचेज करते, डिडक्टेबल बोल रहे हैं आप? नॉट एलिजिबल फॉर क्रेडिट। मतलब मुझे वो क्रेडिट, नॉन डिडक्टेबल आ गया ना, मतलब वो हाँ तो। हाँ, मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा उसका, इट्स माय हाँ कॉस्ट, इट्स माय कॉस्ट। हाँ, तो मतलब आपकी जो एंट्री है ये होगी आपकी, और ये कुछ नहीं आएगा आपका। नहीं, बट एज पर जो आप टेबल देखेंगे ना रिटर्न्स का, हम्म उसमें क्या हम्म करना पड़ता है, आपको शो करना पड़ता है हाँ ऊपर ठीक आईटीसी। है ना। आपकी ये जो है आपके एक्सपेंसेस में ऐड हो गई आपकी ओके। 8,800 और 2,200, और हम्म आपको टैक्स कोड तो क्रिएट करना ही है। हम्म और आपको ये जो भी टैक्स कोड जैसे बनाया है, ये मैंने एच बी हम्म करके बनाया है, हम्म वो आपका यहाँ पे टैक्स कोड के कॉलम में आएगा। और ये हम्म जो है मतलब आपकी एक्चुअल बेस अमाउंट कितनी है, 8,000 रुपीज। वो हम्म 8,000 के ऊपर जो भी परसेंटेज है, 5%, 12% या हम्म। 18%, वो कैलकुलेट करके यहाँ पे ऐड होगा आपके एक्सपेंसेस में। नहीं, बट मुझे स्प्लिट कैसे मिलेगा, उसका नहीं, नॉट उसका एलिजिबल है। स्प्लिट नहीं मिलेगा, उसका स्प्लिट नहीं नहीं, मिलेगा। इट्स रिक्वायरमेंट है ना, कि मुझे कैसा रिटर्न में देखेंगे ना, ठीक है, तो हाँ हाँ। टेबल में पूरा ड्यूरिंग द मंथ पूरा आईटीसी कितना मिला है, हम्म। एंड वो क्रेडिट लेके बिलो द लाइन अंडर सेक्शन 17 ब्रैकेट 5 में आपको रिवर्सल हम्म। दिखाना है, दैट पर्टिकुलर एंट्रीज। ओके, मतलब आप नॉन डिडक्टेबल की ही बात कर रहे हो? हाँ, नहीं नहीं, डॉट डिडक्टेबल नहीं है, सपोज अभी परचेस है वेंडर हाँ अकाउंट टू स्टेशनरी अकाउंट टू आईटीसी अकाउंट, हाँ। हम्म। वो आईटीसी आ गया मेरा, मैंने आईटीसी ऊपर ले अच्छा, लिया, तो ठीक है। आईटीसी मतलब आईटीसी अगर आपका आता है तो उसकी तो सेपरेट लाइन आइटम आएगी आपकी। यस। मैं ये जो बात कर रहा हूँ एचबी टैक्स कोड, ये नॉन डिडक्टेबल की बात कर रहा हूँ मैं। ओके। और आईटीसी की तो आपकी सेपरेट लाइन आइटम आएगी, हम्म ये आपकी नहीं, सेपरेट लाइन आइटम दिखेगी ये आपकी नॉन टैक्स की। डिडक्टेबल का भी है ना, नॉन डिडक्टेबल का हाँ भी है ना, हाँ सपोज 8,000 के हाँ ऊपर जो 800 रुपये आएगा, यहाँ पे हाँ हाँ हाँ। एलिजिबल रहेगा तो आईटीसी में आएगा, ठीक है। हम्म 800 रुपये हम्म। मुझे एलिजिबल नहीं है, हाँ, तो मुझे वो क्रेडिट लेके रिवर्स करना है, कॉन्ट्रा एंट्री वो रहेगा। फिर मतलब आप आरसीएम की बात कर रहे हैं फिर उस केस में? नहीं नहीं नहीं, आरसीएम नहीं, ये कैसे है, आरसीएम अलग हो जैसे जाएगा फिर। जैसे जैसे आप बोलो ना, पर्सनल बेनिफिट्स है, एम्प्लॉय को देता है, हम्म इंश्योरेंस निकालता है हम्म एम्प्लॉय का, हम्म या हम्म स्टाफ हम्म वेलफेयर को कुछ रिप्लेसमेंट देते हैं, तो इट्स हम्म। नॉट एलिजिबल फॉर इन जीएसटी क्रेडिट, ठीक है। ओके, अभी सपोज में कोई स्टे उस करता है केस होटल, में अभी होटल में जैसे स्टे ये करते नॉन हैं डिडक्टेबल का आपको दिखाना है बेस अमाउंट कितना है और टैक्स अमाउंट कितना है, अगर आपको दिखाना है तो आपको रिपोर्ट पर्पज के लिए चाहिए, राइट वो? यस यस। तो रिपोर्ट में अपने को फिर उस हिसाब से फॉर्मूलाज देना पड़ेगा, और हम्म फिर वो स्प्लिट कर सकते हैं अपन। क्योंकि अपने को ये जो टैक्स कोड है हम्म इसमें कितना परसेंटेज है, 12% है या 18 है या 5% है, वो अपने को परसेंटेज मिलते हैं टेबल से। TRCD अंडरस्कोर एलिमेंट्स करके टेबल है, हम्म वहां से अपने को ये डेटा मिल जाता है। तो हम्म उसके बेस पे अपन स्प्लिट कर सकते हैं मतलब अमाउंट हम्म रिपोर्ट में। मगर हम्म अकाउंटिंग एंट्री में आपको अकाउंटिंग एंट्री ऐसे ही दिखेगी, ओके। भले वो एक्टिव स्प्लिटिंग भी रहा तो आपकी एंट्री ये रहेगी। हम्म हाँ क्योंकि समझ। आपकी एक ही लाइन आइटम है और उसमें एक ही प्रॉफिट सेंटर अपडेट हो रहा है आपका, ओके तो ये वैसे स्प्लिट नहीं होगी वो। ओके। आप अमाउंट के हिसाब से मतलब कैसी होगी ये, कि ये आपका नहीं रहेगा, आपकी जो एंट्री है टैक्स की जो एंट्री है वो हम्म नहीं दिखेगी सेपरेटली हम्म आपको, ये एंट्री दिखेगी आपको। मगर हम्म रिपोर्ट पर्पज के लिए आप फॉर्मूला दे के मतलब एबैपर के हेल्प से आप स्प्लिट कर सकते हो। हम्म। नहीं, एग्जिस्टिंग हम लोग कैसे करते हम्म। हैं, स्टेशनरी अकाउंट 8,800 इज ओके, ओके। हम्म। टू आईटीसी, ओके। आईटीसी नॉन क्रेडिट कोड, नॉन क्रेडिट कोड ऐसे, ओके, यानी टू 120 आईटीसी। 120 इज माय एलिजिबल कोड, 120 इज माय हाँ, नॉट एलिजिबल कोड, तो ओके, दैट ये नॉट एलिजिबल 800 कोड है आ ना गया मेरा। ऑलरेडी, हाँ दैट नॉट एलिजिबल कोड है ना, वो ऑलरेडी हाँ हाँ। स्टेशनरी में डेबिट हो जाएगा, बट रिपोर्ट में आपको प्रॉपर दिखेगा दैट टैक्स इज नॉट ओके, एलिजिबल।
मुझे एक बार अकाउंटिंग एंट्री दिखाना, मतलब मुझे पिंग कर देना, मैं वो एक्सप्लेन करूंगा आपको फिर। लगा तो अपन वैसे टैक्स कोड जब बनाएंगे ना, वैसे अपन बनाएंगे भी टैक्स कोड फिर वैसे। बेसिकली अभी सपोज CSR स्पेंड में बहुत सारा एक्सपेंस करता हूँ मैं, ठीक है, बट अच्छा एज पर अच्छा GST रूल्स CSR स्पेंड एक्सपेंस इज नॉट एलिजिबल फॉर क्रेडिट। ओके, ठीक क्रेडिट है, नहीं ले सकते उसका हाँ, अपन या जीएसटी का। CSR स्पेंड का नहीं मिल सकता है, इट्स अ हम्म ब्लॉक ITC, ठीक है। या ओके आप ओके। कोई बिल्डिंग मटेरियल रिपेयर करते हैं, ठीक है, हाँ इट्स हाँ नॉट हाँ एलिजिबल फॉर क्रेडिट। ऑल्सो ओके। जो एम्प्लॉय का इंश्योरेंस निकालते हैं, फैक्ट्री मेडिकल इंश्योरेंस, एम्प्लॉय ESIC। नॉट LIC, दैट इंश्योरेंस, इंश्योरेंस ओके प्रीमियम, ओके। दैट पॉलिसी प्रीमियम पेड ना, तो उसके ऊपर जो GST पे किया है वो नॉट एलिजिबल फॉर क्रेडिट, ठीक है। तो आपको पहला ओके शो करना पड़ता है दैट पर्पस, अच्छा। इतना इतना मेरा ITC है, बट वो मैंने रिवर्स किया है ब्लॉक ITC में, ठीक है। हाँ 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 हाँ। वो मैं आपको सेंड करूंगा हाउ टू चलेगा ना चलेगा ना। हाँ, मैं ये एज इट इज रखता हूँ, क्योंकि ये ओके, फाइल में आपको शेयर करूंगा तो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, अभी इसके बाद आता है अपना जीरो बैलेंसिंग। ओके, जीरो बैलेंसिंग में अभी मैंने एक एंट्री किया है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रॉफिट सेंटर डाला VT12, और इसका मेरा पेमेंट भी हो गया है। ये जो अकाउंट, ये इनवॉइस है, इसका मेरा पेमेंट भी हो गया है। और ये मैंने एंट्री की थी दिसंबर मंथ में, ये मैंने एंट्री पोस्ट की थी दिसंबर मंथ में। मगर मुझे आज के डेट में 13 जनवरी को मुझे पता चला कि ये जो प्रॉफिट सेंटर है, ये मैंने गलत यूज किया है। ये जो प्रॉफिट सेंटर है, ये मैंने गलत यूज किया। एक्चुअली ये जो एक्सपेंसेस है मेरा VT11 का था, जो मैंने VT12 में डाला है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसकी एडजस्टमेंट एंट्री करूंगा, क्योंकि मेरी अकाउंटिंग एंट्री तो हो चुकी है, मेरा पोस्टिंग पीरियड भी क्लोज हो चुका है। वैसे भी अगर मेरा पोस्टिंग पीरियड भी ओपन रहता तो ये मैं प्रॉफिट सेंटर चेंज नहीं कर सकता था, क्योंकि अपने को अगर आप एक बार पोस्ट कर देते हैं अकाउंटिंग एंट्री, तो कुछ स्पेसिफिक फील्ड है वही आप चेंज कर सकते हैं, मतलब रेफरेंस या टेक्स्ट फील्ड या असाइनमेंट फील्ड, ये जो है जिससे आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इम्पैक्ट नहीं गिरेगा, वो फील्ड आप चेंज कर सकते हैं। क्लियर? तो ये मैं चेंज नहीं कर सकता हूं वैसे, और मैं रिवर्स भी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि इसका मेरा ऑलरेडी पेमेंट हो चुका है। राइट, तो मैं क्या करूंगा, एडजस्टमेंट एंट्री करूंगा। एडजस्टमेंट एंट्री मेरी क्या होगी, एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट VT12। ओके, वापस मैं सेम अकाउंट हेड को डेबिट दूंगा, और जो मुझे करेक्ट प्रॉफिट सेंटर में भेजना है उसको मैं डेबिट दूंगा VT11। तो ये मेरी एडजस्टमेंट एंट्री हो गई। मगर इसके साथ में ये मेरा जीरो बैलेंसिंग का जो अकाउंट हेड है वो मेरा हिट होगा। वह कैसे, जीरो बैलेंसिंग अकाउंटिंग डेबिट VT12 और जीरो बैलेंसिंग अकाउंटिंग क्रेडिट VT11। अगर मैं कंपनी कोड से मैं अगर रिपोर्ट रन करता हूं और ये प्रॉफिट सेंटर के इस पे से मैं रन करता हूं, तो मेरा प्रॉफिट सेंटर का जो है ये जीरो होता है। अगर ये मेरा क्रिएट नहीं होगा तो मेरा ये जीरो होगा क्या, प्रॉफिट सेंटर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होगा। तो वो जीरो होने के लिए मेरा ये जीरो बैलेंसिंग का जो GL है ये हिट हो रहा है। तो ये जो अकाउंटिंग एंट्री बनती है ना, ये ऑटोमेटिक एंट्री बनेगी
आप जब ये कॉन्फ़िगरेशन में सिर्फ आपको जीएल मेंटेन करना है, जीरो बैलेंसिंग का कौन सा जीएल आपको मेंटेन करना है वो आपको मेंटेन करना है, तो वो जीएल पे आपकी एंट्री चली जाएगी। मतलब आप जीएल ईयर एंड पे रन करोगे तो वो उसका जो टोटल है वो 0 दिखेगा आपको। ओके क्लियर? ये या ऐसे 3 फीचर्स डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग में दिए हैं, और वो आपको जब क्वेश्चन पूछेंगे न्यू जीएल कंसेप्ट क्या है, तो उसमें आपको एक्सप्लेन करना है विथ अकाउंटिंग एंट्री एग्जांपल, कि आपको एक्टिव स्प्लिटिंग में क्या होता है, पैसिव स्प्लिटिंग में क्या होता है, और जीरो बैलेंसिंग में क्या होता है, और वो सारी चीजें ये डॉक्यूमेंट्स में कवर की है, विथ अकाउंटिंग एंट्री कवर की है इसे। और कॉन्फ़िगरेशन भी है, जो कॉन्फ़िगरेशन अभी अपन देखने वाले हैं। क्लियर? या कोई डाउट कंफ्यूजन इसमें? और सपोज वैभव इसमें गुड इन ट्रांजिट रहेगा तो कैसे आएगा? गुड इन ट्रांजिट मतलब अकाउंटिंग एंट्री, मतलब कहाँ पे बोल रहे हैं आप, कौन से परचेस में, स्प्लिट में बोल? परचेस में आपने जीआरएन में देखा ना, वेंडर अकाउंट, मटेरियल रिसिप्ट, पेमेंट्स दे दिया, जीआरएन आ गया एंड इनवॉइस ये बुक हो सिनेरियो गया। में बोल रहे हैं आप? हाँ, तो बिफोर सपोज कि- ट्रांजिट रहेगा तो कैसे रहेगा? मतलब आप एडवांस देने की बात कर रहे हैं या हाँ फिर कैसे, मतलब? हाँ, एडवांस तो दे दिया है, प्लस हाँ मैंने हाँ। गुड इन ट्रांजिट में है मेरा, हम्म। गुड इन ट्रांजिट है, इसके लिए मैंने एडवांस दे दिया ना। राइट, तो आपका परचेस ऑर्डर के अगेंस्ट ही आप एडवांस दे रहे हो ना आप तो। हम्म, आपको एडवांस कब देना है? आपके जीआरएन एंट्री के पहले देना है आपका। ओके। आपकी अगर एक बार जीआरएन की एंट्री हो जाती है तो आप हम्म, एडवांस की एंट्री, मतलब वो आपको मैसेज देगा, वार्निंग मैसेज आपको क्रिएट करेगा। ओके तो आपको जीआरएन के पहले आपको एडवांस की एंट्री क्रिएट करना है। अच्छा, नहीं तो मुझे वो मुझे सपोज मेरा ट्रांजिट स्टॉक बुक करना है दिस मंथ, तो मतलब प्रोविजन बोल रहे हैं आप? हाँ प्रोविजन, यानी अभी सपोज मेरा परचेस है हम्म ये महीने का, हम्म मैं फॉरेन से हम्म। परचेस करता हूँ, उसका बुक्स और अच्छा, मेरा बुक्स टैली करने के लिए मुझे टैली मटेरियल करने के तो लिए दो आप महीने के बाद आ प्रोविजन एंट्री जाएगा। करते हो, मगर हाँ। वो प्रोविजन की जो एंट्री रहेगी आपकी, जो हम्म, प्रोविजंस के जो जीएल है वो हम्म, उसमें चली जाएगी उसमें। मतलब उससे आपका एडवांस या इससे आपका मतलब रिलेशन नहीं रहेगा, मतलब वो तो टाइप ऑफ एडजस्टमेंट एंट्री टाइप रहता है। हम्म, नेक्स्ट डे मतलब फर्स्ट डे ऑफ द मंथ आप वापस रिवर्स कर देते हो तो हम्म। प्रोविजन, प्रोविजन मतलब वो आपको ऑटोमेटिक सिर्फ। ऑटोमेटिक दैट जीआरएन जब एक बनेगा ना, ठीक है, हाँ तो ऑटोमेटिक हाँ हिट्स टू दैट ट्रांजिशन, वो ऑटोमेटिक रिवर्स हो जाता है। हाँ, दैट मतलब इज वही आप प्रोविजन, मतलब आप लायबिलिटी दिखा रहे हैं सिर्फ कि भाई मेरी इतनी लायबिलिटी है, ये जो यस। मैंने बुक की है। राइट, मगर उसका और ये एडवांस से ऐसा कुछ लिंक नहीं रहता है, मतलब आपका ओके आपका लिंक जो है एडवांस का सीधे परचेस ऑर्डर से ही आपका, ये सिर्फ आपका जो ट्रांजिट, मतलब आप सिर्फ प्रोविजन बुक कर रहे हैं कि इतना इतना प्रोविजन है मेरा करके। और फिर जब आपका 4 या 5 तारीख को जो भी आपका एक्चुअल गुड रिसीट होगा, आप जीआरएन करोगे और ये जो प्रोविजन है वो रिवर्स हो जाएगा आपका। मतलब यस। वो 4 या 5 तारीख तक वेट करने की जरूरत है ही नहीं, आपका नेक्स्ट डे ही आप रिवर्स कर देते हैं वो, फर्स्ट नहीं डे ऑफ द वो मंथ मतलब। फॉरेन का कैसे दो दो महीने लगता है? हाँ, वो मतलब वो जो फॉरेन जो वैल्यूएशन वो अलग चीज है। फॉरेन करेंसी वैल्यूएशन जो है ना उसका भी फॉरेन करेंसी प्रोविजन नहीं, होता है। हाँ, ट्रांजिट मटेरियल ओनली फॉर फॉरेन पार्टीज ओनली, लोकल पार्टी का तो तुरंत मिल जाता है ना, तो दैट इज नॉट प्रॉब्लम। लोकल नहीं नहीं, अपन फॉरेन के इसका भी अपन करते हैं वैल्यूएशन मंथ एंड में एक्टिविटी में, वो भी एक्टिविटी आती है अपनी, वो भी अपने कॉन्फ़िगरेशन में है वो पार्ट में, वो भी तो वो तो एक्टिविटी हाँ होती वो, है मंथ एंड में। आई नो हाँ दैट डेटा स्टेटस हम्म, फ्लक्चुएशन हाँ इनटू हाँ फ्लक्चुएशन, हाँ हाँ आरबीआई हाँ एज पर आरबीआई रूल, आरबीआई हाँ, रेट। उसको एक स्पेसिफिक वर्ड है वो कि फ्लक्चुएशन, एक सेकंड में, फ्लक्चुएशन, फॉरेन फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन तो एक सेकंड उसमें रियलाइज गेन लॉस। हाँ यस यस यस, रियलाइज गेन लॉस फॉरेन फ्लक्चुएशन, हम्म हम्म। उसमें 3 तो पार्ट होता वो है, भी डेटर्स अपना होता है, मंथ एंड में क्रेडिट। एक्टिविटी आती है उसकी अपनी। यस यस यस। हम्म।
या तो अभी इसका अपन पूरा कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग का। सबसे पहले मुझे ये डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग एक्टिवेट करना है। ओके, और आपके प्रोजेक्ट में अगर 4 कंपनी कोड है, VT11, HY01, HY02, HY03, HY04, ऐसे अगर 4 कंपनी कोड है, तो उसमें से आपको 3 कंपनी कोड के लिए एक्टिव करना है डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग, और एक के लिए नहीं करना है, तो वैसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, मतलब वो भी फैसिलिटी अवेलेबल है। मगर एक बार आपने डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग एक्टिव किया तो उसको इनएक्टिव नहीं कर सकते आप। क्लियर? या हेलो राजेंद्र। हेलो।
अभी अपने को सबसे पहले देखना है डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग, अपने को एक्टिवेट करना है। ठीक है, मेरी स्क्रीन दिख रही है राइट विलास यस। दीपा? हम्म। ठीक है, तो अभी अपने को वहां पे पाथ में जाना है। पाथ है उसका SPRO IMG फाइनेंशियल अकाउंटिंग जनरल लेजर अकाउंटिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन, ओके, डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग। अभी यहाँ पे ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन है डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग का। इसमें सब अपना रिलेवेंट नहीं है, मतलब सब चीज यूज नहीं होने वाले। अपने जो जो लगने वाले हैं वो एक एक स्टेप्स अपन देखेंगे। सबसे पहले अपन एक्टिवेट करेंगे डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग को। ठीक है, अभी यहाँ पे डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग में यहाँ पे दिया हुआ है पाथ एक्टिवेट डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग करके। ये मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। अभी ये ट्रेनिंग सर्वर है, यहाँ पे ऑलरेडी डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग एक्टिवेट करके रखा हुआ है। अगर आप जब लाइव प्रोजेक्ट पे जा रहे हो तब आपको यहाँ पे एक्टिवेट करना है, टिक करना है इसको, डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग को। ठीक है, और फिर बाद में आएगा यहाँ पे मेथड आएगी 12। ये 12 मेथड क्या है अगर आप देखोगे, स्प्लिटिंग सेम एज 02। 02 में क्या दिया है, स्प्लिटिंग कस्टमर वेंडर टैक्स मनी कंपनी कोड क्लियरिंग। ये सारा मेरा स्प्लिट होना चाहिए कौन से बेस पे, कॉस्ट के बेस पे। मतलब इसलिए अपन ये 12 नंबर का मेथड यूज करने वाले हैं। 12 नंबर का मेथड मतलब इंक्लूडिंग 02 भी है ये, मतलब 2 और 12 ये दोनों मर्ज करके एक मेथड बनाया गया है राइट। तो इसलिए अपन ये 12 नंबर का मेथड सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद में यहाँ पे आपको कंपनी कोड अगर डीएक्टिवेशन करना है, जैसे मैंने बताया कि आपके प्रोजेक्ट में अगर 4 कंपनी कोड है उसमें से आपको एक कंपनी कोड डीएक्टिवेट करना है। जिस कंपनी कोड को डीएक्टिवेट करना है मतलब जिस कंपनी कोड में आपको ये डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग एप्लीकेबल नहीं करना है उसको टिक करना है, यहाँ पे इनएक्टिव करना है। तो ठीक है, मगर अपन अपनी कंपनी कोड क्या है, HY01। ठीक है, इसको अपन टिक नहीं करेंगे क्योंकि अपने को डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग ये अप्लीकेबल करना है ये कंपनी कोड के लिए। क्लियर, ये हो गया अपना फर्स्ट स्टेप। Is that mean like if we active, it will take all the three splits, right? Passive, active, and Yeah. zero. No. You need to configure active splitting and document splitting, zero balancing splitting. There is Okay. separate configuration for every Okay. document splitting. Now we are seeing active splitting. Huh? Yeah, this is only a document splitting first concept. But if you are not configure the here, this is the first step. Classify GL accounts for document splitting. If you are not configure here, so passive splitting is not applicable for your company code. Mm-hmm. If you are not maintaining the GL for zero balancing, then zero balance Okay. clearing account entry is not Okay. applicable in your company code. Okay. क्लियर? Okay. सबसे पहले ये एक्टिवेट स्प्लिटिंग किया, इसके बाद में ये जो फर्स्ट स्टेप है क्लासिफाई जीएल अकाउंट्स फॉर डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग, ये पैसिव स्प्लिटिंग के लिए यूज होता है। यहाँ पे अपने को पूछा गया है चार्ट ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग है ये अपने जनरल लेजर जो सब मॉड्यूल है उसके अंडर आता है। ये मतलब अपन सारा जो स्प्लिटिंग जो करेंगे पैसिव स्प्लिटिंग वाला वो जीएल बेस पे करने वाले हैं। इसलिए यहाँ पे अपने को क्या पूछा, सबसे पहले चार्ट ऑफ अकाउंट्स। अपना चार्ट ऑफ अकाउंट क्या है, HY01 ही है राइट। ये अपना HY01 है, ये मैंने सिलेक्ट किया यहाँ पे और ये एंटर किया। अभी यहाँ पे मेरा पूरा ब्लैंक है। यहाँ पे जैसे मैंने
OBD41 नहीं, OBD4 यहाँ पे जैसे मैंने GL मेंटेन किया है ना, जैसे ये एडवांस का GL है, बैंक बैलेंस है, कैजुअल लेबर है, कैश इन हैंड है, वैसे ही मुझे यहाँ पे अभी मेंटेन करना है, मगर इसके सामने मुझे कैटेगरी मेंटेन करना है। अभी दिखाता हूं मैं कैटेगरी क्या क्या है। ये SAP स्टैंडर्ड कैटेगरी है यहाँ पे, मतलब कस्टमर है, वेंडर है, कैश अकाउंट है, बैलेंस शीट अकाउंट है, जीरो बैलेंस पोस्टिंग है। मतलब आप जो ये जो ग्रुप बनाए हैं आपने, ये जो ग्रुप बनाए हैं अकाउंट हेड के, वो सारे वहां पे मेंटेन करने हैं, मगर ये जो अकाउंट हेड है कौन से कैटेगरी में फॉल करता है, वो कैटेगरी अपने को वहां पे मेंटेन करनी है। अभी जैसे कैजुअल लेबर, ये मेरी कौन सी है, एक्सपेंस वाली कैटेगरी है, राइट। जैसे ये मैंने ये GL सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने मेंटेन किया ये, और यहाँ पे मुझे उसकी कैटेगरी देना है। कहाँ है एक्सपेंसेस की कैटेगरी, ये वाली एक्सपेंस की कैटेगरी है, ये मैं सिलेक्ट करूंगा। फिर बाद में मेरी और बैलेंस शीट वाले फिक्स एसेट को जो GL है मेरे, ये फिक्स एसेट के GL है मेरे, ये मैं सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे मेंटेन करूंगा, और यहाँ पे दिया है मुझे बैलेंस शीट का कैटेगरी, ये मैं सिलेक्ट करूंगा। अभी ऐसे मुझे हर GL की कैटेगरी देख के यहाँ पे मेंटेन करना है। अगर आपने समझ लो कि इनकम्प्लीट कैटेगरी यहाँ पे मेंटेन की है, सिर्फ मैंने इतनी कैटेगरी मेंटेन की, ठीक है, एक्सपेंसेस की, मगर इसके बाद में अगर मैं ये नया GL अगर बनाता हूं यहाँ पे मेरे, समझ लो ये मैंने इसके आगे का सीरीज का एक GL बनाया मैंने, ये मैंने एक नया GL क्रिएट किया, और ये GL जो है यहाँ पे कहीं पे भी मेंटेन नहीं है मेरा, यहाँ पे कहीं पे भी मेंटेन नहीं है। तो मुझे जब मैं ये विदाउट मेंटेनेंस अगर ये GL पे एंट्री करने जाऊंगा, तो मुझे आइटम कैटेगरी एक्सपेंसेस की क्या है मेरी 20,000 है, राइट, ये 20,000 है, तो उसका मुझे एरर मैसेज आ जाएगा कि आइटम कैटेगरी 20,000 इज नॉट मेंटेन फॉर दिस GL। ऐसे मेरा स्टैंडर्ड एरर मैसेज आएगा। मतलब ये जो एक्टिविटी रहेगी आपकी वन टाइम एक्टिविटी रहेगी, मगर आप जो सीरीज मेंटेन कर रहे हैं उसके अगर बाहर का अगर नया GL मास्टर डेटा आप अगर क्रिएट करते हैं तो उसमें आपको एरर मैसेज आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे नए GL बनाने के बाद आपको यहाँ पे मेंटेन करना है। क्लियर। जैसे मैंने बताया था यहाँ पे कि आप अगर डायरेक्टली पेमेंट एंट्री करते हो, ये वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये अगर एंट्री करते हैं आप, तो यहाँ पे जो बैंक अकाउंट का जो कैटेगरी है ना, यहाँ पे बैंक अकाउंट कैश अकाउंट का ये जो 4,000 ये जो कैटेगरी है ना, इसका एरर मैसेज आपको आ जाएगा। आइटम कैटेगरी 4,000 इज नॉट अलाउड, मतलब वो मैसेज आ जाएगा आपको। सिस्टम आपको डायरेक्टली पेमेंट एंट्री अलाउ नहीं करेगी। क्लियर।
ये मैंने मेंटेन किए यहाँ पे कैटेगरी। ये किसके लिए अपन मेंटेन कर रहे हैं? ये हुआ अपना पैसिव स्प्लिटिंग के लिए। ये जो कैटेगरी जो मेंटेन कर रहे हैं ये अपन पैसिव स्प्लिटिंग के लिए मेंटेन कर रहे हैं। इसके बाद में अपना जो आएगा वो एक्टिव स्प्लिटिंग के लिए आएगा। अभी क्लासीफाई डॉक्यूमेंट टाइप्स फॉर डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग, ये जो नेक्स्ट पार्ट है उसके लिए है। ये जो है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है आपका एक्टिव स्प्लिटिंग के लिए है। ये जो अभी अपन करेंगे वो किसके लिए है? वो एक्टिव स्प्लिटिंग के लिए है। Yes. अभी जो अपन कॉन्फ़िगरेशन देखने वाले हैं वो एक्टिव स्प्लिटिंग का कॉन्फ़िगरेशन रहने वाला है। जैसे मैंने बताया यहाँ पे कि अपन प्री डिफाइंड रूल मेंटेन करने वाले। प्री डिफाइंड रूल के लिए क्या मेंटेन करने वाले? डॉक्यूमेंट टाइप। और ये जो डॉक्यूमेंट टाइप है ये किस सिनेरियो के लिए अपन यूज करने वाले हैं वो अपन यहाँ पे मेंटेन करने वाले हैं। अभी यहाँ पे तो मेंटेन करके रखा है। अभी मैं दिखाता हूँ ये KR डॉक्यूमेंट टाइप। ये अपना कौन सा है? वेंडर इनवॉइस सिनेरियो के लिए है, राइट। ये KR डॉक्यूमेंट टाइप। अभी यहाँ पे ट्रेनिंग सर्वर है, यहाँ पे वन टाइम ऑलरेडी मेंटेन करके रखा है। मगर आप जब लाइव प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट टाइप के लिए मेंटेन करना है, जो डॉक्यूमेंट टाइप आप यूज करने वाले हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है? ये बिजनेस ट्रांजैक्शन। अभी ये बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है? आपका वेंडर इनवॉइस है, राइट। KR अपन किसके लिए यूज करने वाले हैं? वेंडर इनवॉइस के लिए यूज करने वाले हैं यहाँ पे। इसलिए अपन कौन सा बिजनेस ट्रांजैक्शन टाइप सिलेक्ट करेंगे? 300। फिर बाद में आता है वेरिएंट। वेरिएंट में यहाँ पे दो वेरिएंट दिए हैं, एक स्टैंडर्ड वेरिएंट और एक है इनवॉइस रिसिट विथ रिटेंशन, मींस वेंडर इनवॉइस, इनवॉइस रिसिट। अभी ये जो इसमें दोनों में फर्क क्या है? यहाँ पे मैंने एक सिनेरियो दिखाया था अपना। ये जो है P2P प्रोसेस होती है, राइट। परचेस ऑर्डर, गुड रिसिट, इनवॉइस रिसिट और पेमेंट एंट्री, राइट। ये जो सिनेरियो होते हैं इसको क्या बोलते हैं अपन? P2P प्रोसेस, प्रोक्योरमेंट टू पेमेंट साइकिल, राइट। तो यहाँ पे जो इनवॉइस रिसिट जो बनती है ना उसके लिए ट्रांजैक्शन कोड यूज होता है MIRO, माइरो। तो वो जो है यहाँ पे दिया हुआ है 002 वेरिएंट में। ओके और ये जो मैं हर टाइम एग्जांपल लेता हूँ ना, ये एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, ये जो एग्जांपल है अपना नॉन PO वाला इनवॉइस। मतलब आप उसको बोल सकते हैं यूटिलिटी बिल, जिसका अपन परचेस ऑर्डर नहीं बनाते। यूटिलिटी बिल्स मतलब अपन MSADCL चार्जेस, उसका अपन परचेस ऑर्डर नहीं बनाते, राइट। वापस टेलीफोन चार्जेस, उसका अपन परचेस ऑर्डर नहीं बनाते, राइट। तो वो जो बिल्स आते हैं यूटिलिटी बिल्स, वो सारे अपन नॉन PO के अंडर बुक करते हैं। तो वो कौन सा इनवॉइस हुआ? स्टैंडर्ड इनवॉइस हुआ। और जो P2P प्रोसेस के सिनेरियो में चलता है वो कौन सा? इनवॉइस रिसिट, मतलब वो माइरो ट्रांजैक्शन से बुक होता है। ये दोनों में फर्क है। मतलब अभी ये जो KR डॉक्यूमेंट टाइप है आप किसके लिए यूज कर रहे हो? ये स्टैंडर्ड इनवॉइस के लिए यूज कर रहे हो या फिर माइरो ट्रांजैक्शन के लिए यूज कर रहे हैं?
तो वो वेरिएंट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। क्लियर? क्या मेंटेन करना है यहाँ पे? मतलब आप जो डॉक्यूमेंट टाइप सिलेक्ट कर रहे हैं उसका तो बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब क्या आ गया आपका? सिनेरियो आ गया। फिर बाद में वो सिनेरियो में आपका वेरिएंट मेंटेन करना है। अभी जैसे केआर है ये वेंडर के लिए है, वैसे डीआर जो है वो अपना कस्टमर इनवॉइस के लिए होता है। तो कस्टमर इनवॉइस के लिए आप यहाँ पे ये एसएपी स्टैंडर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन है ये सारे। यहाँ पे कस्टमर इनवॉइस के लिए कौन सा दिया है? 0 to 100 दिया हुआ है। तो ये आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और वापस यहाँ पे अगर आप ड्रॉप डाउन में जाते हैं तो यहाँ पे वेरिएंट आ जाएगा। क्लियर? अगर पेमेंट की एंट्री है, अभी पेमेंट के लिए केजेड ये डॉक्यूमेंट टाइप यूज होता है। केजेड ये वेंडर पेमेंट है। तो आप अगर यहाँ पे बिजनेस ट्रांजैक्शन पे ड्रॉप डाउन करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है पेमेंट 1000। ठीक है, मतलब ये रूल अपन डिफाइन कर रहे हैं। रूल क्या डिफाइन कर रहे हैं अपन? डॉक्यूमेंट टाइप, ये अपना प्री डिफाइन रूल है। Sir, in that variant, actually, if we have both standard and one more MIRO concept, हाँ हाँ, what we should नहीं select in this case? नहीं, उस केस में कैसे होता है कि अपन ये केआर जो है नॉन पीओ के लिए यूज होता है, और जो मायरो के लिए होता है ना वो आरई ये इनवॉइस टाइप होता है, आरई करके Okay. डॉक्यूमेंट टाइप यूज होता है। तो यहाँ पे आप 002 ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। Okay. आपका डॉक्यूमेंट टाइप अलग आ जाता है इसमें Yeah, and P2P one more प्रोसेस doubt में। okay. हम्म, In this list, it is better to understand each lines, right? For a for yeah, and for this document type list now you will get in the OBA 70 code. Mhm. This is Okay. our document type list. Mhm. यहाँ से आपको पूरे डॉक्यूमेंट टाइप मिल जाएंगे, और इसके लिए टेबल भी है। टेबल है T007 Mhm. 007S, ये टैक्स कोड नेम है, ए टैक्स की है इसका T007 समथिंग ऐसा टेबल है इसका। तो वहां से भी आपको टेबल से भी मिल जाएगा, या फिर आपका जो डॉक्यूमेंट टाइप का जो टी कोड है वहां से भी आपको लिस्ट मिल जाएगी OBA 7 से। अभी जैसे ये ए डॉक्यूमेंट टाइप है, राइट? तो उसके लिए मेंटेन करना है, ये मेरा डॉक्यूमेंट टाइप आ गया ए। यहाँ पे मैं बिजनेस ट्रांजैक्शन सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे एसेट अकाउंटिंग रिलेटेड कुछ दिया नहीं है स्पेसिफिकली, क्योंकि ये मेरा ए मतलब क्या है? एसेट अकाउंटिंग रिलेटेड मेरा डॉक्यूमेंट टाइप है। तो यहाँ पे आपको अनस्पेसिफाइड पोस्टिंग करके सिलेक्ट करना है। ओके, और फिर बाद में यहाँ पे आपका ये 01 आपका आ जाएगा अनस्पेसिफाइड ही पोस्टिंग करके। क्योंकि ए डॉक्यूमेंट टाइप जो है अपन एसेट रिलेटेड जितने भी सिनेरियोज होते हैं, रिटायरमेंट हो गया, स्क्रैप हो गया, सेल्स हो गया, एसेट सेल हो गया, या एक्विजिशन हो गया, ओके, विदाउट पीओ एक्विजिशन जो होता है, ये सारे जो ट्रांजैक्शंस करते हैं उसके लिए अपन एक ही डॉक्यूमेंट टाइप यूज करते हैं ए करके। जैसे अपन ने वेंडर इनवॉइस के लिए केआर है, वेंडर पेमेंट के लिए केजेड है, ऐसे अलग अलग जैसे डॉक्यूमेंट टाइप है, वैसे अपन एसेट अकाउंटिंग के लिए सिनेरियो वाइज अलग अलग डॉक्यूमेंट टाइप नहीं मेंटेन करते हैं। सारे सिनेरियो के लिए एक ही अपन डॉक्यूमेंट टाइप यूज करते हैं ए। तो वहां पे ऐसे बिजनेस ट्रांजैक्शन यहाँ पे दिया नहीं है ऐसे भी, तो आप अनस्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन करके सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। क्लियर? ये हो गया आपका एक्टिव स्प्लिटिंग के लिए रूल डिफाइन करना। ठीक है,
अभी तीसरा जो है अपना, अभी कौन सा नेक्स्ट, जीरो बैलेंसिंग, राइट। ये डिफाइन जीरो बैलेंसिंग क्लियरिंग अकाउंट। तो यहाँ पे आपको सिर्फ जीरो बैलेंसिंग के लिए जो जीएल यूज करने वाले हैं वो जीएल आपको मेंटेन करना है यहाँ पे। जैसे ये अकाउंट की दी है 000, ये एसएपी स्टैंडर्ड अकाउंट की है, इसमें जाके आप आपका जीएल मेंटेन कर सकते हो। ये मैंने सिलेक्ट किया और उसमें आपकी पोस्टिंग की 40 और 50 ही रहेगी। ये 40-50 किसके लिए बता सकते हैं दीपा आप? रिवर्सल एंट्री आई थिंक ना, पोस्टिंग की है 40 for customer customer invoice. नहीं नहीं विलास, It's creditor या बैंक? नहीं, ये जो 40 जो यूज होती है जीएल डेबिट के लिए और हाँ 50 जो होती है वो क्रेडिट के लिए, जीएल क्रेडिट के लिए। Yeah. और कस्टमर के लिए जो यूज होती है 01 to 9 और 11 to 19। yes Yes, yes, yes. ओके, ये मैंने रोज सिलेक्ट किया, अकाउंट्स में मैं गया, यहाँ पे अपने को चार्ट ऑफ अकाउंट पूछेगा वापस, क्योंकि अपन जीएल मेंटेन कर रहे हैं। आप एंड यूजर हो या फंक्शनल हो, आप अगर जीएल रिलेटेड कुछ भी एक्टिविटी करोगे तो आपको सिस्टम चार्ट ऑफ अकाउंट्स ये पूछेंगे, मतलब पूछेगी सबसे पहले। तो आपको वहां पे चार्ट ऑफ अकाउंट डालोगे और फिर आगे आपको अलाउ करेगी सिस्टम। ये जैसे मेरे ये कैटेगरी हो गई, फिर बाद में ये आइटम कैटेगरी जो है अभी ये अपन ने कैटेगरी मेंटेन की थी, ये अभी ये जो पैसिव स्प्लिटिंग के लिए, राइट। तो अगर यहाँ पे कैटेगरी आप देखते हो, क्या कैटेगरी है, 01001 जीरो बैलेंसिंग के लिए, राइट। तो वही कैटेगरी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे भी आई है ये, क्योंकि अपन जो जीरो बैलेंसिंग का जो जीएल क्रिएट करने वाले हैं वो इसी कैटेगरी में अपने को मेंटेन करना है। अगर यहाँ पे आप मेंटेन नहीं करोगे तो जब अपन जीरो बैलेंसिंग की जब सिनेरियो आएगा, एंट्री बुक करोगे आप, तो आपको इसका आइटम कैटेगरी 01001 का एरर सिस्टम देगा, पॉपअप मैसेज आ जाएगा उसका। तो ये लिंक है उसका पूरा, क्लियर। yeah इसके बाद में ये कैटेगरी हो गई, इसके बाद में आया अपना चार्ट ऑफ अकाउंट्स HY01। ओके, फिर बाद में अपन ने जो अकाउंट की जो सिलेक्ट की है 000 स्टैंडर्ड एसएपी की, वो आ गई है। और यहाँ पे अपने को जीएल क्रिएट करके मेंटेन करना है। जो जीएल अपन जीरो बैलेंसिंग के लिए क्रिएट करेंगे वो जीएल क्रिएट करेंगे और वहाँ यहाँ पे मेंटेन करना है। यहाँ पे वो जीएल का डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, क्लियर। ये हो yes गया अपना स्प्लिटिंग जीरो बैलेंसिंग डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग का कॉन्फ़िगरेशन, ये वाला। ओके, अभी इसमें और एक आखिरी स्टेप बची है। कौन सी स्टेप बची है अपनी अभी आखिरी में, अपने को जो कैरेक्टर है वो मैंडेटरी करना है। जो कैरेक्टर अपने को यूज करना है, कौन से कैरेक्टर है, बिजनेस एरिया, सेगमेंट एंड प्रॉफिट सेंटर। ये तीन में से जो कैरेक्टर अपने को मैंडेटरी करना है वो अपन यहाँ पे अभी सिलेक्ट करेंगे। इसके नीचे वाले पाथ में डिफाइन डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर जनरल लेजर अकाउंटिंग,
ये मैं पाथ में जाता हूँ। अभी यहाँ पे प्रॉफिट सेंटर और ये सेगमेंट दिया हुआ है, और आप बिजनेस एरिया जो है ये डिलीट कर दिया है यहाँ से। आपका बिजनेस एरिया भी यहाँ पे आ जाएगा। आपको अगर प्रॉफिट सेंटर करना है तो यहाँ पे आपका सिलेक्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे ये आ गया मैंडेटरी फील्ड। जो मैंने सबसे पहले आज के सेशन में बोला था कि आप जो मैंडेटरी करते, मतलब जो सिलेक्ट करोगे कैरेक्टर, वो मैंडेटरी हो जाएगा। मतलब हर अकाउंटिंग एंट्री में आपका प्रॉफिट सेंटर रिफ्लेक्ट होगा। क्लियर? ये Yeah. आप यहाँ पे मेंटेन करोगे। ये जो अपन ने जो स्टेप्स देखे, ये अपने न्यू जीएल कंसेप्ट या डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग रिलेटेड जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो कॉन्फ़िगरेशन था पूरा। क्या क्या देखा अपन ने? सबसे पहले अपन ने डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग एक्टिवेट किया, राइट? उसके बाद में अपन ने कैटेगरी मेंटेन किया। उसके बाद में अपन रूल डिफाइन किया। रूल मतलब क्या कि प्री डिफाइंड एक्टिव स्प्लिटिंग के लिए, राइट? उसके बाद में जीरो बैलेंसिंग क्लियरिंग अकाउंट के लिए किया, और फिर अपन ने कैरेक्टर जो है वो सिलेक्ट किया, राइट? ये अपना डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग का कॉन्फ़िगरेशन है। कुछ डाउट, कंफ्यूजन इसमें? No. इसमें मतलब आपका पूरा ये जो है रिपोर्टिंग पर्पज के लिए यूज होता है ये पूरा डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग। मतलब Mhm. इससे आप जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब जनरेट करोगे तो आप प्रॉफिट सेंटर बेस पे आप जनरेट कर सकते हो, या रिपोर्टिंग जो है, मतलब जैसे रिपोर्ट मैंने दिखा बताया कि आप Mhm. एक्टिव स्प्लिटिंग की जब एंट्री होने के बाद आप अगर टैक्सेस का जीएल अगर ओपन करते हैं, लेजर ओपन करते हैं, तो आपको ये स्प्लिट मिलेगा। इवन अकाउंटिंग एंट्री में भी आप अगर जनरल लेजर अकाउंटिंग व्यू में अगर जाते हैं तो Mhm. वहां पे भी आपको स्प्लिट करके मिलेगा वो एंट्री। मतलब जो एंट्री जो है, अभी जैसे मेरी ये एंट्री है 31, मतलब ये 31 मतलब क्या हो गया? ये पोस्टिंग की 31 मतलब Mhm. Vendor debit. वेंडर क्रेडिट है। वेंडर डेबिट नहीं, वेंडर क्रेडिट है। वेंडर डेबिट के लिए 21 to 29 है, और वेंडर क्रेडिट के लिए 31 to 39 है। ओके, ये 31 आ गया मेरा, और अभी ये मेरी नॉर्मल एंट्री है। अगर आप इसको स्प्लिट करते हो तो आपकी एंट्री जो है ऐसी अपीयर होगी। ये जनरल लेजर सिमुलेशन है। ओके, मगर ये एक एक एंट्री हो गई। आप डायरेक्टली आप रिपोर्ट में भी चेक कर सकते हो। अगर लेजर ओपन करते हैं उसके लिए टी कोड है रिपोर्टिंग पर्पस के लिए, मतलब रिपोर्टिंग के लिए FAGL 03 करके। ओके, तो उससे आप ये जो जनरल लेजर व्यू का जो है वो एंट्री आपको डिस्प्ले होगा। और आप अगर FBL 3N रन करते हैं तो आपको ये नॉर्मल एंट्री ओपन होगा। ये डिफरेंस है। FAGL 03 और FBL 3N, ये दोनों जो है, ये जो इनपुट टैक्स के लिए आप अलग अलग रन करोगे तो अलग अलग आपको व्यू होगा। FAGL 03 आपके ये न्यू जीएल कंसेप्ट के हिसाब से दिखेगा एंट्री, और ये FBL 3N में नॉर्मल एंट्री आपको दिखेगी। क्योंकि आपका जो डेटा स्टोर होता है ना, वो मतलब ये जो रिपोर्ट जो है ये कैप्चर भी अलग अलग टेबल से करता है। अभी
ये न्यूजीएल कंसेप्ट जो है, इसका जो डेटा पूरा जो होता है स्टोर FA फैगल फ्लेक्सा करके टेबल है, वहां पे स्टोर होता है। FBL मतलब नॉर्मल एंट्री का जो टेबल है वो BSEC टेबल है। ऐसे मतलब SAP ने जहां जहां स्टोर किया है डेटा, वैसे वैसे वो कैप्चर करता है वो। सेव कर देता हूँ। क्लियर? अभी इसके बाद में क्या टाइम हो रहा है, अपन एक नया टॉपिक छोटा सा तो ले मुझे सकते वैसे हैं बोलना है कि एक्चुअली। अपन प्रॉफिट सेंटर वाइज एक्सपेंस बुकिंग करा है, ठीक है। सम एक्सपेंस प्रॉफिट सेंटर में पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए है, तो कंपटीशन कर सकते हैं। अभी सपोज आपने प्रॉफिट सेंटर किया है VT 111213, बट दैट पर्टिकुलर एक्सपेंस VT 11 इज सम वापस कॉस्ट वाइज है, प्रोडक्ट वाइज। प्रोडक्ट वाइज कर सकते हैं ना। अगर आप आपका एग्जांपल अगर लेते हैं, आपका है इंपोर्ट प्रोडक्ट है, राइट, और एक डोमेस्टिक है, राइट, ऐसा ही है ना आपका बाइफर्केशन? हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये तो परचेस है, ये डॉक्यूमेंट टाइप है, ओके ठीक है। सपोज पर्टिकुलर ओके मेरा कंजम्पशन है, या सपोज मुझे मेरा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट टू वेंडर अकाउंट, सपोज मेरा एंट्री है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट टू वेंडर टू, अकाउंट, वेंडर ओके, अकाउंट, इट्स बिजनेस, मेरा प्रॉफिट सेंटर है VT 11, ठीक है। हम्म बट इट्स पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट फॉर RM परचेस है, ठीक है। हाँ, तो वो हाँ, कैसे करेंगे? मतलब रॉ मटेरियल परचेस के लिए हाँ हाँ, तो ट्रांसपोर्ट वो कॉस्ट तो, यूज हो रहा है, हाँ हाँ, राइट। वो तो मटेरियल में जाना चाहिए। हाँ, तो ये मटेरियल में जाना चाहिए आपकी। तो हम्म, आप ये परचेस ऑर्डर थ्रू आप दिखाना चाहते हैं P2P प्रोसेस में, या फिर नॉन PO इनवॉइस में दिखाना चाहते हैं? ये परचेस थ्रू, परचेस थ्रू पीओ अगर पीओ आप पीओ दिखाते पीओ हैं बेस, पीओ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, एवरीथिंग इज पीओ बेस। हाँ PO बेस है, तो आप जब परचेस ऑर्डर क्रिएट करते हैं ना, हम्म तो अगर आपका एक रॉ मटेरियल है, ठीक है, अभी हम्म ये 1000 रुपीज का रॉ मटेरियल है आपका, तो हम्म इसमें आपकी एक टैक्स प्रोसीजर डिफाइन होती है साइड से। हम्म ओके, ये हम्म टैक्स प्रोसीजर आपकी डिफाइन होगी। इसमें ये बेस प्राइस है आपकी, 1000 रुपीज आपकी हम्म बेस प्राइस है। इसके बाद में आपका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आ जाएगा। अभी हम्म ये समझ लो आपका 1% है, हम्म ठीक है। तो ये जो 1% का जो कैलकुलेशन है, ये जो कैलकुलेशन इसकी एक कंडीशन टाइप बनाई जाती है टैक्स प्रोसीजर में। ओके। ओ, हाँ, वो स्टैटिस्टिकल है या नॉन स्टैटिस्टिकल है, तो उस हिसाब से परसेंटेज डिफाइन करते हैं, या फिक्स प्राइस मतलब फिक्स कॉस्ट मेंटेन करते हैं। अगर हम्म आपने परसेंटेज बेस पे बनाई है,
जस्ट सेकेंड, मैंने यहाँ की पावर चली गई थी। हेलो राजेंद्र। हेलो राजेंद्र। हेलो राजेंद्र। हेलो राजेंद्र।
अपन देखने वाले हैं, स्क्रीन विजिबल